So toy is in the form of a cone surmounted on a hemisphere. The diameter of the base and the height of the cone are 6 centimeter and 4 centimeter. Diameter means the radius. Radius here is 3 centimeter and the height is 4 centimeter. Height is 4 centimeter and the radius is 3 centimeter. Determine the surface area of the toy. So पहले तो L निकाल लो, root under R square plus H square. So this is 5 centimeter. So slant height 5 centimeter हो गया. Pi का value 3.14 लेना है. Surface area of the toy. किसका doubt है? सर मेरा सब तो सिंपल क्वेश्चन है. इस ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी कितने सारे कर लिए. एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है. यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस. ट्राई किया करो. यहाँ पे ये सरफेस एरिया ऑफ टॉय है. आप चैप्टर समझे हैं. सरफेस एरिया मतलब जो सरफेस हमें दिख रहा है. यहाँ पे जो सरफेस छिप गया है वो ये सरफेस छिप गया है. हमने कोन को इसके ऊपर रख दिया है तो वो तो सरफेस दिख ही नहीं रहा है. जब वो सरफेस दिख ही नहीं रहा है तो उसका एरिया निकालने की जरूरत नहीं है. एरिया किसका निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया जो इसका है कोन का और जो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का है, उन दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकल जाएगा. सो सरफेस एरिया ऑफ टॉय is CSA of cone plus CSA of hemisphere. So this will be equal to IRL plus 2 pi r square. So 3.14 लेने बोला है. 3.14 into 3 into 5. 2 into 3.14 into 3 into 3. 15 into 3.14. 47.1 plus 56.52. So this is 103.62 centimeters square. Clear, बच्चों? यस सर. Done, sir. सबने लिख लिया? यस सर. Thirteenth question. 13th question. A solid is in the form of a right circular cylinder with a hemisphere at one end and a cone at the other end. So you have a cylinder, cone at one end and hemisphere at other end. The radius of the common base is 3.5 centimeter. So radius R is equal to 3.5 centimeter. तो सभी जगह radius 3.5 centimeter है. Height of the cylindrical and conical portion are 10 centimeter and 6 centimeter. So इसका height is 6 centimeter. इसका height is 10 centimeter. Find the total surface area of the solid. Total surface area यहाँ पे देखो, ये कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया. सबका कर्व्ड सरफेस एरिया ही लेंगे क्योंकि ये वाला एरिया छिप जाएगा और सिमिलरली ये वाला एरिया छिप जाएगा. ये दोनों एरिया दिखेगा नहीं बाहर से. सो हम लोगों को निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. सो TSA ऑफ सॉलिड is equal to CSA of cone plus CSA of
cylinder plus CSA of hemisphere. सबको ऐड कर लेंगे IRL. तो अब देखो यहाँ पे L का वैल्यू रूट अंडर 6 square plus 3.5 square. So this will give you the value of L is equal to 6.95. PSA of cylinder is 2 pi r H2 and this is 2 pi r square. Pi का वैल्यू यहाँ पे 22/7 बोला है. 22/7 3.5 6.95 plus 2 into 22/7 3.5 and height 10. 2 into 22/7 3.5 into 3.5. कर गया. Eleven into 6.95. $76.45. 22 into 10 is 220. 22 into 3.5. 77. $373.45. ठीक है बच्चों. थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आ रहा है वो हम लोगों ने वहां पे we have taken an approximate value here and that's why वो जो डिफरेंस आ रहा है. एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो फिर वो जो 1 पॉइंट का डिफरेंस 372.56 इसमें दे रखा है, हम लोग का 373.4 का है. आगे समझ सबको लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्टीन्थ के बाद 14th question. A toy is in the shape of a right circular cylinder with a hemisphere on one end and a cone on the other. A right circular cylinder, hemisphere at one end and cone at the other. The radius of the height of the cylindrical part, radius and the height of the cylindrical part are 5 and 30. And this is 5, 13 centimeter. The radii of the hemispherical and conical parts are the same as that of the cylindrical part. Find the surface area of the toy. The total height of the toy is 30 centimeters. Total height 30 centimeter है. ये 13 है, ये 5 हो जाएगा. 13 plus 5 18 हो गया. तो इसका जो height है ये 12 सेंटीमीटर हो गया. सी ये रेडियस है, ये भी रेडियस होगा, तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 13 दे रखा है, टोटल 30 है, तो बचा हुआ हाइट 12 सेंटीमीटर हो गई. रेडियस सबका सेम ही है, दिस इज 5 सेंटीमीटर ओनली. सो एल का वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा. सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे. टोटल सरफेस एरिया, ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, खुद से करोगे. पाई आर एल प्लस 2 पाई आर इंटू H1 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. सारे वैल्यूज डालोगे और सॉल्व कर दो. क्लियर बच्चों?
Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ये किसका था डाउट? Anyways, so 13th and 14th is similar, so I'm not solving 14th. These are the values. You can just put in here and find the answer. ठीक है बच्चों? Yes, sir. So I'm rubbing this now. फिफ्टींथ क्वेश्चन है, a vessel is a hollow cylinder fitted with a hemispherical bottom of the same base. एक सिलेंडर है और इसके नीचे एक hemispherical bottom है. The depth of the cylinder is 14 by 3 meter and diameter of the hemisphere is 3.5. So radius is 3.5 by 2 and the height of cylinder is 14 by 3 meter. Calculate the internal surface area of the solid. देखो इंटरनल सरफेस एरिया का मतलब, देखो इस वेसल का इंटरनल सरफेस एरिया क्या होगा? इसका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का और ये हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों निकाल लेंगे अगर, सो वी हैव 2 पाई r into h प्लस 2 पाई r स्क्वायर. क्लियर है बच्चों? ये वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं. 2 into 22 by 7 3.5 by 2 into 14 by 3. दूसरा है 2 into 22 by 7 3.5 by 2 into 3.5 by 2. Right. So 11 into 14 upon 3. So this is 154 by 3. 3.5 into 11. 38.5 by 2. तो ये 77 by 4 हो जाएगा. एलसीएम अगर 12 ले लेते हैं, (77 by 12 मीटर स्क्वायर. मिक्स फ्रैक्शन पे कॉमन से. Is it clear? Yes, sir. You clear? Yes, sir. Eighteenth question is cubical block of side 10 centimeter is surmounted by a hemisphere. So cubical block of side 10 centimeters are mounted by hemisphere. What is the largest diameter that the hemisphere can have? Largest diameter is equal to side of the
cube. Find the cost of painting. So largest diameter is equal to side of cube, which is equal to 10 centimeters. So radius is equal to 5 centimeters. Find the cost of painting the total surface area of the solid so formed at the rate of ₹5 per 100 centimeter square. So हम लोग पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे और उस टोटल सरफेस एरिया को निकालने के बाद रेट ऑफ पेंटिंग दे रखा है तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हम लोग निकल के आ जाएगा. सो टोटल सरफेस एरिया जो हमें दिख रहा है, सो दिस इज 6a स्क्वायर, ये TSA क्यूब का माइनस ऑफ ये वाला एरिया जिसके ऊपर हम लोग ने हेमिस्फीयर रख दिया पाई आर स्क्वायर प्लस जो एरिया हमें दिख रहा है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया. अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे. 6 इंटू साइड ऑफ क्यूब इज 10, so 10 into 10 plus pi r square, pi का वैल्यू कुछ बुला लेना नहीं दे रखा है, 3.14 ही ले लो, into radius is 5 into 5. This is the total area. So this is 600 plus 3.14 into 25. 78.5. 678.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें कह रहा है find the cost of painting the total surface area of the solid so formed at the rate of ₹5 per 100 centimeter square. So cost is equal to 678.5 by 100 into 5. ₹5 per 100 centimeter square, इसीलिए 100 से डिवाइड किया और उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई किया. So this will be equal to 6.785 into 5. 33.925. So this is ₹33.925. क्लियर बच्चों? सर लार्जेस्ट डायमीटर क्यों दिया हुआ है? डायमीटर तो फिक्स ही होता है. लार्जेस्ट डायमीटर देखो, इसमें तो कितना भी छोटा बना सकते हो ना तुम. एक ऐसा हेमिस्फीयर भी बना सकते हो जो कि पूरा कवर ना करे. अच्छा, सरमाउंटेड से वो फिक्स नहीं हो जाएगा? अगर सरमाउंट किया तब तो माउंटेड पूरा. में फिक्स हुआ है, बट जो ऊपर वाला जो हम उसको ऐसे बना रहे हैं कि ऊपर वाला जो है, ये जो क्यूब का जो टॉप सरफेस है, इस टॉप सरफेस का एंड टू एंड नहीं कवर कर रहा. हो सकता है ऐसे सरमाउंट करके यहीं तक कवर कर. अच्छा, ओके. सरमाउंटेड का मतलब उसके ऊपर रखना. अब उसके ऊपर रखना सबसे बड़ा डायमीटर का क्या पॉसिबिलिटी है? तो इतना जो इसका ये पूरा जो उसका साइड है उतने दूर तक ही उसका डायमीटर हो सकता है, तभी तो वो पूरा कवर करेगा ना. यस. इससे बड़ा नहीं हो सकता है. तो मैक्सिमम क्या है? उसके साइड के बराबर हो सकता है उसका डायमीटर. ये बता रहे. क्लियर है बच्चों? यस सर. और कोई डाउट इसमें? क्या कर रहे थे क्लास में? क्या कर रहे थे? क्वेश्चन 8 तक हो गया था. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टार्ट किया था ना. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड वाला ही कर रहे थे ना, फ्रॉम वन शेप टू अनदर.
एग्जाम्पल 8 कर लिया था नहीं? हाँ सर एग्जाम नहीं, क्वेश्चन 8 कर रहे थे सर हम। तो सेकंड वाला एक्सरसाइज खत्म हुआ है मतलब बस। हाँ जी सर, अब थर्ड मतलब एग्जांपल्स पहले करने। का concept बताना और आगे पढ़ाना है ना। यस सर। So conversion of solid from one shape to another. ठीक है। So conversion of solid from one shape to another. मान लो एक solid है, उसको मेल्ट करके हम लोग किसी और शेप में लेकर आते हैं, तो इन दोनों सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा, राइट? सो व्हेन यू मेल्ट Yes. वन सॉलिड, है ना, उसको फिर तुम मोल्ड करके किसी और सॉलिड के फॉर्म में लेकर आओगे, तो इन दोनों सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, राइट? तो यही कॉन्सेप्ट है इसमें, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर. So when you convert solid from one shape to another, the volume of the solid remains the same. Okay? So example 8, if you see, a cone of height 24 centimeter and radius of base 6 centimeter is made up of modeling clay. A child reshapes it in the form of a sphere. Find the radius of the sphere. तो पहले ये कोन के शेप में था क्ले, उसके बाद उस बच्चे ने इस क्ले से एक स्फीयर बना लिया, ठीक है ना? Cone of height 20 centimeter, so height of this cone is 24 centimeter and radius of the base is 6 centimeter. R is equal to 6 centimeter is made up of, find the radius of the sphere. You have molded it into a sphere and the radius of that is, let's say, capital R. So since cone is reshaped into sphere, volume of cone is equal to वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो ये थोड़ा आसान पड़ जाता है क्योंकि पाई का टर्म दोनों तरफ कट जाता है, इसीलिए इसमें कैलकुलेशंस इजी होते हैं. तो ये देखो 1/3 पाई r स्क्वायर h इज 4/3 पाई इनटू कैपिटल R क्यूब. कैपिटल R का वैल्यू निकालना है तुमको. पाई और पाई दोनों तरफ कैंसिल हो गया, 3 और 3 दोनों तरफ कैंसिल हो गया. r स्क्वायर h दैट मींस 6 into 6 into 24 is equal to 4 into r क्यूब. इसको भी कट कर लोगे तो यहाँ पे भी 6 हो गया, तो सिंपल है भाई, r क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब हो गया, 6 into 6 into 6, so that means radius r is equal to 6 centimeter. Clear है? Sir, can you explain it once more? Yes. So what happens, Samiksha, when you are, let's say we have a candle at home, right? And we didn't like the shape of that candle. या फिर मॉडलिंग क्ले जो होता है जिससे बच्चे खेलते हैं, पता नहीं तुम्हारे उम्र में था कि नहीं, मेरे बेटियों की उम्र में तो बहुत सारा क्ले घूमता रहता है घर में. तो या फिर डो समझ लो, वो पहले एक कोन के शेप में था, उसी क्ले को यूज करके हमने कोन, मतलब उसको फिर से वापस मिक्स करके हमने एक स्फीयर बना लिया. तो वॉल्यूम जो यूज किया था कोन बनाने के लिए, और वॉल्यूम, उसी वॉल्यूम को हम यूज कर रहे हैं, मतलब उसी मटेरियल को हम यूज करके एक स्फीयर बना दे रहे हैं, तो वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा. So Yes, sir. volume of cone is equal to volume of sphere. Why? Because we are using the same material and we are reshaping it in some other shape. But the volume will remain the same because the matter which is being used is same in both the cases. So that's why we equated the volume. We have the radius and height of this cone. We have to find the radius of the sphere in which we are reshaping it. So equating the volume, we get the volume, radius of the sphere to be equal to 6 centimeter.
Okay, sir. Thank you. लिख लिया सबने? सर एक मिनट, हाँ सर लिख लिया। सर वो 4/3 पाई आर स्क्वायर लिखा है क्या? क्यूब है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर अच्छा, क्यूब किया है, तभी तो 6 क्यूब आर क्यूब के बराबर। यहाँ हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर लिखा है। ओके सर। वो मेरा हैंडराइटिंग वैसे हो गया है, ठीक है। हाँ सर। Ninth question. Selvi's house has an overhead tank in the shape of a cylinder. This is filled by pumping water from a sump, an underground tank, which is in the shape of a cuboid. तो जनरली तुम ऐसे शहरों में जहाँ पे पानी किसी टाइम पे आता है ना, उन वहां पे क्या होता है, एक अंडरग्राउंड टैंक बना हुआ रहता है। पहले पानी उसमें भरता है और जब उसमें भर जाता है तो फिर दिन में फिर से मोटर से ऊपर टंकी पे पानी चढ़ाते हैं। ठीक है, आई डोंट नो वेदर यू हैव कम अक्रॉस दिस और नॉट। तो वो जो अंडरग्राउंड वाला संप है उसको संप कहते हैं बेसिकली, जो अंडरग्राउंड टैंक है, दैट इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। और जो घर के छत के ऊपर जो टैंक है, ओवरहेड टैंक, वो सिलेंडर के शेप में। So the overhead tank has its radius 60 centimeter and height 95 centimeter. तो जो ऊपर घर के ऊपर जो टैंक है ये सिलेंडर के शेप का है, और जो घर के नीचे एक टैंक है वो क्यूबॉइड के शेप का है। ठीक है, नाउ द क्यूबॉइड का जो डायमेंशन इज 1.57 मीटर। तो इन सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 157 सेंटीमीटर लेंथ, width is equal to 144 centimeter and height is equal to 95 centimeter. And apart from that, the overhead tank has its radius 60 centimeter. So radius is equal to 60 centimeter and height h is equal to 95 centimeter. Find the height of the water left in the sump after the overhead tank has been completely filled with water from the sump which had been full. Compare the capacity of the tank with that of the sump, pi 3.14 लेना है। तो अब जब इसमें से पानी हमने इसमें भरा तो इसके बाद इसमें पानी कुछ खाली हो गया होगा, राइट? अब पानी लेट से इसमें इतना ही बचा, इस पोर्शन में बचा। सो ये पूछ रहा है आपसे कि कितना वाटर, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प, मतलब ये कितना हाइट ऑफ वाटर इसमें रह गया है सम्प के अंदर, इसमें पानी भरने के बाद, राइट? तो पहले उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। पाई का वैल्यू बोल रहे हैं 3.14 लेने के लिए, 3.14 into 60 into 60 into 95. So this is equal to 1073880. Now मान लो इसमें x अमाउंट ऑफ वाटर जो है, पहले जो x हाइट का वाटर इसमें से कम हो गया। सो
volume of water emptied is equal to length into breadth into ये depth x. This is equal to 1073 880 is equal to 157 144 into x. X is equal to 1073880 by 157 into 144. $47.5 सेंटीमीटर. देखो टोटल हाइट है 95 सेंटीमीटर, उसका हाफ खाली हो गया इसमें से, राइट? तो बचा कितना हाइट, कितना पानी उसमें बचा? h dash is equal to h minus x 95 minus 47.5 is equal to 47.5 सेंटीमीटर हाइट का पानी इसमें बच गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार भरने में इसका पानी आधा खाली हो जाता है, तो दो बार भरेंगे तो पूरा टैंक खाली हो जाएगा. मतलब द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज हाफ द वॉल्यूम ऑफ द टैंक. तो यही कंपेयर करना था हम लोग को. यू कैन राइट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू half the volume of tank. ठीक है? सर एक बार प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ हाँ जरूर करेंगे. ये कह रहा है हमारे पास एक टैंक है, मतलब घर के नीचे. बेसिकली क्या होता है, इसलिए ऐसे समझा रहे हैं कि तुम सब रिलेट कर पाओ होता क्या है. पानी दिन में सुबह 2 घंटे आता है, रात में 2 घंटे आता है लेट्स से, और तुमको उससे पानी से दिन भर काम चलाना है. तुम सारे काम उसी टाइम पे तो करोगे नहीं. तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का वाटर सप्लाई है उसको हमने इस टैंक में भर लिया 2 घंटे में, तो ये पूरा टैंक फिल हो गया. अब ये तो, और उसमें इतना फोर्स नहीं रहता है कि एक ही बार में तुम घर के ऊपर वाला टैंक को भर सको. दैट्स नॉट पॉसिबल. सो वो धीरे धीरे पानी आता है, वो इसमें फिल हो गया. जब तुम्हारा इसमें पानी फिल हो गया, तुमको क्या करना है, इस पानी को ऊपर ट्रांसफर करना है. तो इसके लिए घर के अंदर एक मोटर हमने लगा लिया. उस मोटर से ये जब पानी इसमें है, इसको हम लोगों ने वापस ऊपर ट्रांसफर कर दिया, राइट? सो ये दिन भर हमारा यूज होता रहता है, राइट? टैप्स वगैरह में यही पानी आता है हमारे, और बाद में जब ये खाली हो जाता है दोबारा हम इसको भर लेते हैं. तो अब ये कहना चाह रहा है कि आप जब एक बारी इसका पानी इसमें पूरा पानी टैंक में जब फिल कर लेते हो, तब आपसे पूछ रहा है कि कितना हाइट ऑफ वाटर इसके अंदर बचा, इस टैंक में कितना वाटर बचा अगर हम लोग इसको एक बार फिल करते हैं. तो पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे कि टैंक का वॉल्यूम क्या है, वो हम लोगों ने निकाल लिया. लेट्स से इसको पानी भरने में इसमें जो हाइट ऑफ वाटर जो खाली हो रहा है, लेट्स से x सेंटीमीटर का हाइट खाली हो जा रहा है इसमें से वाटर. सो जो इसका वॉल्यूम है वो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू दिस इज द हाइट ऑफ वाटर व्हिच हैज बीन रिमूव्ड. सो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट कर देंगे ये वाला, है ना? तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा वाटर का. ये वॉल्यूम निकालने के लिए हमने लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट x कर दिए, उससे x का वैल्यू निकाला 47.5 सेंटीमीटर हो गया. तो ये जो h डैश वाटर इसमें बचा वो कितना बचेगा, टोटल हाइट माइनस x करके. टोटल हाइट h है 95 माइनस 47.5 47.5 सेंटीमीटर बचा. मतलब एक बार टैंक को फिल करने में, ये सिलिंड्रिकल टैंक को एक बार फिल करने में इसका हाफ ऑफ द वाटर इज बीइंग रिमूव्ड. आधी हाइट का वाटर रिमूव कर रहे हैं, मतलब हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज बीइंग रिमूव्ड. लेंथ ब्रेथ तो सेम ही रह रहा है, तो हाफ ऑफ द वॉल्यूम इज रिमूव्ड. तो इसमें बचा कितना, हाफ ऑफ द वॉल्यूम रह गया. तो मतलब ये जो क्यूबॉइडल टैंक है उसका वॉल्यूम इस सिलिंड्रिकल टैंक से डबल होगा.
आगे Yes, समझ? sir. Yes, sir. Thank you. मिटाएं इसको. सबको आगे लिख लिया समझे? मिटा दें? Yes, sir. Yes. Anyone else has any doubt? Tenth question है, a copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness. Find the thickness of the wire. So हमारे पास एक कॉपर का रॉड है. इस कॉपर के रॉड का डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर, मींस रेडियस इज 1/2 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 8 सेंटीमीटर. सो मतलब h is equal to 8 centimeter height of this cylinder. Into a wire of length 18 meter of uniform thickness. इसको हम लोग एक वायर के फॉर्म में कर रहे हैं. इसका लेंथ जो है मतलब कैपिटल H हाइट हम लोग कर देते हैं. ये इसकी जो हाइट है वो है 18 मीटर. उसको सेंटीमीटर में करोगे तो 1800 सेंटीमीटर हो गया. फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर. थिकनेस मतलब डायमीटर हम लोग को निकालने बोले. मान लो डायमीटर d है इसका. ठीक है. सो रेडियस क्या हो जाएगा d/2, या इसका रेडियस ही r कैपिटल R रेडियस ही मान लेते. राइट. सो वॉल्यूम दोनों का सेम होगा क्योंकि इसको मेल्ट करके ये बना रहे हैं. So that means pi r square h is equal to pi into capital R square into capital H. Pi cancel हो गया. 1/2 into 1/2 into 8 is R square into 1800. So 2 2s are 4, 2s are 8. So 2 by 1800 is R square. R square is equal to 1 by 900. So this is 1 by 30 का whole square. इससे हमारा कैपिटल R is equal to 1 by 30. ठीक है. So this is the radius 1 by 30. Now we have to find the thickness. So thickness is twice of this, 2r. So this is 1 by 15 centimeter. So 0.067. Clear बच्चों? Yes, sir. लिख लिया तुमने? Yes, sir. सर एक मिनट. लिख लिया? हाँ सर वो राइट साइड वाला लिख रहा हूँ. Next question. A hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 3/4/7 liters per second. तो यहाँ पे एक टैंक है and this is emptied at a speed of at the rate of 3/4/7 liters. So 25/7 liters per second. Okay, this is the rate at which the water is being removed out of this hemispherical tank. So hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 3/4/7 liters per second. How much time will it take to empty half the tank if it is 3 meter in diameter?
So radius is equal to 1.5 meter. So इसमें से पूछ रहा है कितने टाइम में इसका टैंक का हाफ ऑफ द वाटर इज बीइंग रिमूव्ड. वॉल्यूम ऑफ टैंक is 2/3 pi r cube. 2/3 22/7. 1.5 into 1.5 into 1.5. So 1.5 into 2 into 2. ठीक है. So this is 22 into 2.25 divided by 7. So 49.5 divided by 7. 99/14 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. So 99/14 सेंटीमीटर क्यूब है. Sorry, मीटर क्यूब. It is 3 meters. So meters तो 99/14 मीटर क्यूब हो गया. तो मीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. So this is equal to 99 into 1000 divided by 14 liters. 1 meter cube is equal to 1000 liters. ठीक है. So this is the volume now, right? So this is the volume of tank, right? अब इसमें से पूछ रहा है इसका हाफ जो है वो कितने टाइम में चला जाएगा. So let T be the time in which half of the volume is removed. In which half volume is removed. तो आधा वॉल्यूम रिमूव हो रहा है इसमें टी टाइम में. तो ये टोटल वॉल्यूम है इसका हाफ मींस हाफ इनटू 99,000/14 इज इक्वल टू जो रेट है. रेट हमारा 25/7 है. 25/7 into time t. Rate at which the volume is being removed into time. Speed into time distance जैसे होता है उसी तरह rate into time. Rate of volume. Volume per second तुम्हें पता है. इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना वॉल्यूम निकल जाएगा. तो t टाइम में कितना वॉल्यूम निकलेगा 25/7 into t. That is equal to half of the volume of the hemisphere. ये इक्वेशन क्लियर है सबको? Yes, sir. बस. अब ये 7 2 टाइम्स कट गया. टाइम t इज इक्वल टू 99,000 और ये इधर नीचे आ जाएगा. 25 into 4 is 100. This is 990 seconds. तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है. So this is equal to 990/60 minutes. 3 2s are 33/2. 16.5 minutes. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे. तुम्हारा होमवर्क मैं दे रहा हूं तुम्हें. मैं तुम्हें भेज दूंगा क्लिक करके पिक्चर. ठीक है. ठीक है बच्चों. आई क्लिक द Yes, sir. पिक्चर होमवर्क.
Thank you, sir. Those who have written can leave. Thank you, sir. Rest can write down. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. ठीक है. So bye and take care.